Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Sagittarius Ascendant and the predictions for the month of April 2023. Now for this month, the Ascendant Lord Jupiter will continue to pass through the 4th house till 21st of April, and then it is going to move to its favorable position in the 5th house in the Aries sign. Jupiter will activate your fortune as well as protect your gains and will start to slowly bring in stability into your life by aspecting the ascendant through its ninth aspect. The time frame of 8th April to 21st of April is an exceptionally good time to spend with your family members and especially with your mother. This is also a very good time to enjoy domestic happiness. Time frame from 22nd of April to 5th of May is a good time for students as well as to start, learn and expand your own knowledge by building new set of skills. There are three planets that are combining in the 5th house, and there is also an exchange of the 5th house and the 7th house lord. Mars is sitting in the sign of Mercury and Mercury is going to sit in the sign of Mars. Both the houses are considered very benefic from the house point of view, since fifth house is the house of intelligence, progeny, creativity and speculation. This house is going to become exceptionally strong for you in April. Seventh house also indicates your second progeny and they will also gain benefits during this transit. Now normally the exchange of the fifth and the seventh house lord is considered an indicator of love marriage, but since both the involving planets Mercury and Mars are enemies of each other, so this event will not materialize in the month of April. This exchange will also provide an opportunity for people who are running businesses that are related to education, creative arts and speculation, and the time frame to benefit will be between 22nd of April to 5th of May. This time frame is also going to be suitable for stock market traders to generate profit during the month of April. Mars is going to be located in the 7th house till 7th of May and it will make your spouse very aggressive. Your spouse may also goad you into fight and you should avoid argument at all costs during this month. See, Sagittarius is a fiery sign and that makes people in this sign very ambitious. But unlike the Aries ascendant people who have an aggression out in the open, this is hidden in the Sagittarius ascendant people, which makes it even a more dangerous situation. So it will be better that you should not get into a tangle with your partner or spouse in the month of April, otherwise it will backfire on you. Venus in its own sign in the sixth house from 6th of April to 1st of May is an exceptionally good position for you. The sixth house lord in the sixth house is considered very good from winning in competition as well as clearing competitive exams. Venus is also the lord of the 11th house. So both the wealth generating houses 6th and 11th are getting activated during this time frame of 6th of April to 1st of May. All those people who are looking for a job change and undergoing Venus in MD or AD will definitely find opportunities in the service sector that are lucrative in nature. Now, there are also certain dates where you need to remain cautious, and these are the dates when you should avoid taking any key decision. So, these days in the month of April for you are 9th and 10th of April, 22nd and 23rd of April, and 27th and 28th of April. Avoid taking any key decisions during these 6 days. If you look overall, the position of planet is pretty strong in the month of April. Saturn is going to occupy its own sign. Jupiter will be in its own sign for most of April. Sun is in an exalted position in the fifth house. Mars and Mercury are exchanging signs, and Venus is also present in its own sign. So, overall, looking at the placement of the planet, this month is going to turn out to be a fairly good month for you. So, that's the summary for you for this month. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धनु लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, धनु लग्न के लिए जो स्वामी बनते हैं वो है गुरु, और गुरु चतुर्थ भाव से भ्रमण करते रहेंगे 21 अप्रैल तक, और यहाँ से इसके बाद 22 अप्रैल से लेकर अगले एक साल तक ये पांचवें भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर कि इनकी फेवरेबल राशि पड़ती है
मेष राशि जिसके कि मालिक स्वयं मंगल हैं। गुरु जैसे ही पंचम भाव में आएगा तो अपनी पांचवी दृष्टि से नवे भाव को यानी आपके भाग्य स्थान को, सातवीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को और नवी दृष्टि से आपके स्वयं के स्थान को ये एक्टिवेट कर देगा। और गुरु जब भी लग्न स्थान को देखता है तो व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व प्रदान करता है। तो अगला एक साल गुरु के लिहाज से यानी कि जो आपका लग्न स्वामी भी है उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय है आपके लिए। 8 से 21 अप्रैल तक का समय आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी माता के साथ समय बिता सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है घर पे रह के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताने का। 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक का समय अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप कोई नई स्किल सेट सीख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और आप जितना इस समय में सीखेंगे उतना आप इससे लाभ कमाएंगे। अप्रैल के महीने में 3 ग्रह का जमावड़ा पंचम भाव में हो रहा है जिसकी वजह से पंचम भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पंचम और सप्तम भाव के स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। मंगल बुध की राशि में विराजमान रहेंगे और बुध मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे। तो आपका पंचम भाव से दिखाई जाने वाली चीजें यानी कि बुद्धि, आपकी प्रथम संतति, आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो वो, और अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीजें आपको इनके परिणाम बहुत प्रमुखता से मिलेंगे अप्रैल के महीने में। सप्तम भाव से आपकी दूसरी संतति देखी जाती है, पंचम से पहली और उसका छोटा भाई या बहन यानी कि द्वितीय आपकी संतति सप्तम भाव से देखी जाती है। तो इस केस में अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपकी जो द्वितीय संतति होगी उसका भी इस समय में काफी अच्छा समय निकलेगा। जब भी पंचम और सप्तम भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज होता है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में वो प्रेम विवाह के योगों को जन्म देता है। लेकिन इस महीने में चूंकि जिनके भाव बदल रहे हैं वो आपस में दुश्मन हैं तो इस तरह का इवेंट होने की संभावना बहुत कम दिखती है। इसके अलावा जितने भी लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं व्यवसाय के तौर पर या फिर कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, आर्ट्स एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई या फिर जो भी पेंटिंग राइटिंग स्कल्पटिंग वगैरह में है उन सब के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। अगर आप स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या आप स्वयं ट्रेडर हैं तो 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक का समय आपके लिए बाजार से पैसा कमाने की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब मंगल सप्तम भाव में बैठ के आपके पति या पत्नी को बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाएंगे क्योंकि मंगल जिस भी भाव में बैठता है वहाँ की चीज़ों में वो एक फायर ला के देता है। और हो सकता है आपके पति या पत्नी आपको सामने से चैलेंज करे झगड़ा करने के लिए, आपको जिसे प्रोवोक कहते हैं उकसाना वो करें। तो आपको इससे बचना चाहिए क्योंकि आपके लग्न स्थान में जो राशि पड़ती है धनु की वो भी एक अग्नि तत्व की राशि है तो आप में भी आक्रामक बिहेवियर करने की क्षमता है। यहाँ पे समस्या ये होती है कि जो मेष लग्न के लोग होते हैं उनका जो आक्रामकता रहती है वो बिल्कुल लोग सेंस कर सकते हैं, वो बहुत ओपन होते हैं। लेकिन आपके अंदर जो अग्रेशन है वो छुपा हुआ रहता है और जब ये छुपा हुआ अग्रेशन बाहर निकलता है तो फिर वो एरीज से भी ज़्यादा भड़काइला तरह का काम करता है। इसीलिए अगर इस महीने में आपको स्पाउस के साथ अपने झगड़े में पड़ने का कुछ मौका बने तो आप निकल जाइए वहां से और उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। शुक्र छठवें भाव में अपनी स्थान में बैठे रहेंगे। छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन कहलाती है क्योंकि ये आपको कंपटीशन में जीतने में मदद देती है। कोई भी कोर्ट कचहरी वगैरह का केस होता है तो उसमें भी आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। शुक्र यहाँ पर 6 अप्रैल से लेके 1 मई तक बैठा रहेगा और ये पूरे समय में ही, चाहे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे अगर अप्रैल में तो वो आप उसको क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि 11वें भाव में पड़ती है तो 6 और 11 दोनों भाव आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो दोनों ही स्थानों से आप पैसा भी देखते हैं। तो ये समय फाइनेंस की दृष्टि से आपके लिए अच्छा निकलेगा 6 अप्रैल से 1 मई तक का समय। और जितने भी लोगों के लिए शुक्र महादशा या अंतरदशा से गुजर रहा है उनके लिए ये शुक्र नई नौकरी दिलाने का इंतजाम करेगा जो और भी ज्यादा पैसे वाली होगी क्योंकि आपका सर्विस का भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा इस समय के दौरान। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए और ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से निकलता है। इस समय में आपके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए हमको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना इन दिनों में टालना चाहिए।
तो ये दिन आपके लिए अप्रैल के महीने में है। 9 और 10 अप्रैल, 22 और 23 अप्रैल और 27 और 28 अप्रैल, इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई निर्णय लेना टालिए। देखिए, अगर आप कुल मिला के अप्रैल के महीने में देखेंगे तो ग्रहों की स्थिति बहुत ही जोरदार है। शनि तृतीय भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और तृतीय भाव में शनि अच्छे परिणाम देता है। गुरु ज्यादातर समय अपनी ही राशि में बैठा रहेगा और इसके बाद वो अपनी फेवरेबल राशि में चला जाएगा। सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है, शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है और मंगल और बुध का स्थान परिवर्तन है। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो एक आप काफी अच्छे समय से इस समय गुजर रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी ये महीना आपके लिए काफी अच्छा निकलेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।